Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we have completed our second book. In that we studied about the administration, right? Political science में अपन ने political administration इसके बारे में पढ़ा था. Now we'll start with our third book. That is the G3 बोला है and that is known as modern political analysis, right? In this, look at the syllabus में क्या क्या दिया है. See, there are 4 topics. In first topic, that is the introduction to modern political analysis. In that we'll be studying meaning, nature, difference between traditional and modern political approach. Then third point would be the features of modern political analysis. Then the second topic would be the political system, meaning and nature, functions of the political science. Then classification of political system, Gabriel Almond. Third topic is the political culture. In that we'll be studying the meaning, basic elements and types. Then fourth would be the political socialization. In that we'll be studying the meaning, agencies and type. Then moving towards our index. First topic, introduction to modern political analysis. In that first point, modern political analysis, traditional versus modern political approach. Then second topic is the political science, concept of political system, nature of political system, functions of political system, classification of political system. Third is the public culture, concept of political culture, basic elements of political culture and types of political culture. Then political socialization, concept of political socialization, agencies of political socialization and types of political socialization. Then we'll start with the first chapter, that is introduction to modern political analysis. See, before starting I'll tell you कि मैंने तीनों बुक जो भी रेफ़र की है इट इज़ ऑफ सक्सेस पब्लिकेशन. ओके, आई डोंट नो बट आई प्रेफर सक्सेस पब्लिकेशन क्योंकि इसमें सब कुछ दिया रहता है, अच्छे से डिटेल में दिया रहता है और इजी टू अंडरस्टैंड है. सो आई वुड ऑल्सो प्रेफर यू टू बाय द सक्सेस पब्लिकेशन. तो तीनों बुक जो भी लिए मैंने सक्सेस पब्लिकेशन की ही ली है. इंट्रोडक्शन. The study of political science can be approached in different ways from different angles and perspective. See, ये जो study है, the study of political science क्या कर रहे हैं यहाँ पे, we can understand in different way, different angle और अलग अलग नज़रिए से. Excuse me, I'm sorry. The origin of the study of political science can be traced to the Greek period. See, अब ये जो कंसेप्ट है राइट कि पापा ये मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, हाँ पॉलिटिकल साइंस, ये सब कहाँ से चालू हुआ, ये बहुत पुराना है और ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ ग्रीक में. एरिस्टोटेली इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सी, हु इज द फाउंडर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? एरिस्टोटेली. थ्रू द एजेस there was much theorization on affair of the state and government, and by and large the approach was normative. See, through the ages there were क्या है, बहुत सालों से क्या चल रहा था, बहुत सारे थेरीज आ रहे थे अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट और उसके बारे में सारे अप्रोचेस, बहुत से अप्रोचेस वगैरह हुए. द पोस्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड विटनेस्ड बिहेवियरल रिवोल्यूशन. सी, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद क्या हुआ, बिहेवियरल रिवोल्यूशन आने लग गया, लोगों की सोच में फ़र्क पड़ने लग गया. मोर एम्फसाइज वॉज गिवन टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल फोर्सेस. से ज़्यादा एम्फसाइज किस पे दिया जा रहा था यहाँ पे? मोर एम्फसाइज वॉज गिवन टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल फोर्स. Thus, in the study of political science, transaction happened from traditional political theory to modern political analysis. See, फिर in the study of political science, see, अब ये जो अपन स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, इसमें क्या हो गया, चेंज होता गया. चेंज कहाँ से हुआ? जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी, स्ट्रक्चर थी, वो अभी
चेंज हो गया टू मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल प्रोसेस. इन मॉडर्न वर्ल्ड पावर इज द की इशू इन पॉलिटिक्स. सी, इन मॉडर्न वर्ल्ड क्या है, ये पावर जिसकी अपन बात कर रहे हैं इज द की इशू इन पॉलिटिक्स. Hence, process of acquiring and exercising power got an important place in the study of political science. See, अब ये जो प्रोसेस है, हाँ, जो अपन प्रोसेस कर रहे हैं, पावर ले रहे हैं, उन सब को क्या हो गया, this concept, this all thoughts got an important place in the study of political science. Thus, there is a radical transformation in the nature and concept of political science. बस अब क्या है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इन द नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस. सी, अब ये जो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए. इट वॉज ड्यू टू द न्यू अप्रोचेस एंड मेथड्स अप्लाइड टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अब ये नए नए चेंजेस क्यों हो गए पॉलिटिकल साइंस में, ये जो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स अपन कर रहे हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस क्यों आए, ये सारे, ये जो नए नए अप्रोचेस आए, मेथड्स आए, ये सारे अप्लाई होने लगे पॉलिटिकल साइंस को. और क्या हो गया, पॉलिटिकल साइंस केम अप एज अ सब्जेक्ट एंड इट गॉन अ वेरी बिग मीनिंग, और उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गया. नाउ मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस. पॉलिटिकल साइंस इज़ अ सोशल साइंस. मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस में क्या है, हाँ, अब ये पॉलिटिकल साइंस जो अपन पॉलिटिकल बोल रहे हैं साइंस, ये क्या है, ये एक तरह का सोशल साइंस है. इट्स नेचर इज डिफरेंट देन फिजिकल साइंस लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सी, अपन साइंस बोल रहे हैं तो साइंस बोला तो आपके दिमाग में क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब आता है, राइट. बट क्या है, ये भी एक साइंस है, पॉलिटिकल साइंस भी एक सोशल साइंस है, बट it is different from physics and chemistry. Whenever we study the origin, evolution and development of political science, we find various aspects of the nature of political science. See, whenever we study, जब भी अपन पॉलिटिकल साइंस का ओरिजिन, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, जब भी अपन साइंस का इवोल्यूशन, डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसमें ये पॉलिटिकल साइंस आता ही आता है. The definition and meaning of political science shows that it is a systematic study of political theory, political institution, political force and process. See, the definition and meaning of political science क्या है, अगर आप उसका definition या meaning देखोगे political science का तो आपको क्या पता चलता है, ये एक systematic theory है, एक systematic study है. पूरा systematic study किसका है, it is the systematic study of political theory, political institution, political force and process. When we call politics as political science, we have to see how far this subject stands to the test of science in the secret sense of the term. See, when we call politics as a political science, जब भी अपन ये politics बोलते हैं और उसके बाद क्या है, अपन ये पॉलिटिकल साइंस यूज़ करते हैं, तो अपने को पता चलना चाहिए ये सब्जेक्ट कितना सच होता है साइंस के टेस्ट में एंड ऑल. इन दिस यूनिट विल डिस्कस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ सोशल साइंस. सी, अभी इसमें अपन ये चैप्टर में, ये यूनिट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, विल डिस्कस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ सोशल कंसेप्ट. Concept of political science. The term politics is derived from Greek word polis, which means the city state. See, जब अपन ये वर्ड पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये टर्म पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स कहाँ से आया, द टर्म पॉलिटिक्स ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है polis, which means city state. According to Greek philosopher, politics was a subject which deals with all the activities and affairs of the city state. See, according to Greek philosophers क्या है, see, as per Greek philosopher, politics क्या है, ये एक ऐसा subject है which deals with the all the activities and affairs of the city state.
मतलब ये आपके शहर में, आपके स्टेट में जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी काम होते हैं, उन सब से रिलेटेड रहता है ये पॉलिटिक्स. सो पॉलिटिक्स वॉज द सब्जेक्ट विच डील्स विथ all the activities and affair of the city state. Their city states were known as polis. See, their city state को क्या बोल रहे हैं? Their city states are known as polis. City state was an all-inclusive term, as the ancient Greek made no distinction between the state and the government on one hand and the state and society on the other. See, city state वो क्या था? It included all the terms as a ancient Greek made no distinction. अभी ancient Greek ने क्या किया? इन्होंने state और government इनमें कोई distinction रखा ही नहीं. उनके लिए दोनों चीज़ें same थी यहाँ पे, state and society and the other. They never differentiated between the personal life and social life. See, उस वक्त ग्रीक में क्या था? पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, इनमें कुछ डिफरेंस था ही नहीं, राइट. सी, एक्चुअल में देखा जाए तो ये पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बराबर है ना. पर्सनल लाइफ यानी आपकी खुद की ज़िंदगी, हाँ. सोशल लाइफ यानी अब आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्या है, कितने आपके फ्रेंड्स हैं, एंड ऑल, हाउ यू डील विद देम, हाउ यू बिहेव विद देम, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ कॉल्ड एज द सोशल लाइफ. Hence, according to them, politics was the total study of man, society, state, morality and so on. See, तो according to Greek and their Greek philosophers क्या है? ये politics क्या है? It was a complete study of man, society, state, morality and so on. यहाँ पे अपन जो भी स्टडी कर रहे हैं वो एक इंसान के बारे में, सोसाइटी, स्टेट, सब के बारे में पूरी स्टडी हो रही है. Meaning, the term political science consists of two words, political and science. See, अब अपने को सीधा साफ दिखता है. अब ये जो वर्ड है पॉलिटिकल साइंस, ये सॉरी जो टर्म है पॉलिटिकल साइंस, इसके अंदर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज पॉलिटिकल एंड साइंस. द वर्ड पॉलिटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड polis, which means the city state. ये अपन ने देखा. द वर्ड पॉलिटिक्स कहाँ से आया? is a Greek word polis, which means the city state. In ancient Greek, the basic unit of political organization was the city state. See, अभी जो ancient Greek था ना, वहाँ पे the basic unit of political organization was the city state. It was the foundation of, it was the Greek who first embarked upon the study of state as distinct from the चर्च. से ये ग्रीक था सबसे पहले जिसने आपको बोला कि बाबा ये जो स्टडी ऑफ स्टेट है ये क्या है? ये अलग है चर्च से. स्टडी ऑफ स्टेट और चर्च दोनों अलग अलग है यहाँ पे. ये तो पहले चर्च के ऊपर ही सब कुछ था, चर्च को इम्पोर्टेंस दिया जाता था. अब यहाँ पे क्या है? चर्च और पॉलिटिकल्स दोनों अलग अलग है. द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग were laid by a great Greek philosopher, Socrates, Plato and Aristotle. See, the foundation of political thinker. ये जो फाउंडेशन था ये किसने ले किया था ऑफ पॉलिटिकल साइंस का? इट वॉज लेड बाय मैनी ग्रीक फिलोसोफर लाइक सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटेली. प्लेटो वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द रिपब्लिक. सी, प्लेटो जो था, he was the author of the book The Republic. Aristotle, the father of political science, first used the term politics and converted the subject into an academic discipline. See, अब क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले देखो what they are saying बाबा. ये जो रिपब्लिक, प्लेटो, ये क्या था? प्लेटो ही उसने कौन सी बुक लिखी थी? द रिपब्लिक लिखी थी. फिर एरिस्टोटली ने क्या किया? एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म पॉलिटिक्स एंड कन्वर्टेड द सब्जेक्ट इनटू एन डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन. उसने सबसे पहले ये टर्म पॉलिटिक्स का यूज़ किया और उसने एक सब्जेक्ट बोल के सब यूनिवर्सिटीज़ में वगैरह आ गए थे ये अभी. He published his book Politics as a first systematic study of politics. See, उसने क्या किया?
उसने सबसे पहले ही पब्लिश्ड हिज बुक्स पॉलिटिक्स एज अ फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स. Science is a systematic study of structure and behavior of the physical and natural world through observation, evidence and experiment. See, साइंस क्या है? साइंस ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है. किसका है सिस्टमैटिक स्टडी? ऑफ द स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ फिजिकल, behavior of the physical, right, and natural world through observation, evidence and experiment. So political science is the branch of knowledge that deals with systematic study of structure and behavior of the state and political institution through scientific analysis. So पॉलिटिकल साइंस क्या है? इट इज़ ये एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो किससे साथ डील करता है? विच डील्स विद द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ द स्टेट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू द साइंटिफिक एनालिसिस. सब ये कैसे चल रहा है? इट गोज थ्रू अ प्रॉपर साइंटिफिक एनालिसिस. पॉलिटिकल रेफर्स टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर स्टडी. सी, पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज रेफर्स टू द subject matter of our study. Like science denotes the methodology or the way of studying the process of politics. साइंस क्या है? साइंस ये अपने को सारे मेथोडोलॉजीज बोलता है या फिर ये एक सही तरीके से कैसे स्टडी करने का पॉलिटिक्स वगैरह, ये सारा प्रोसेस जो मिलता है अपने को साइंस से मिलता है. द फर्स्ट टर्म सीक्स टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज स्टडीड and the second term refer to how is it studied. See, जो फर्स्ट टर्म है वो आपको कौन से सवाल का आंसर देता है? क्या पढ़ रहे हो आप? व्हाट इज स्टडीड. और सेकेंड टर्म क्या बोलता है आपको? कैसे पढ़ रहे हो? हाउ इज इट स्टडीड. Therefore the political phenomena which should be studied in accordance with the definite plan or system is called political science. Therefore क्या बोल रहे हैं? ये जो पॉलिटिकल फिनोमिना है जो अपन स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ क्या है? इट गोज एज पर द प्लान और सिस्टम, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस. फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट टू मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डेफिनेशन. इट इज़ डिफिकल्ट टू गिव अ प्रिसाइज डेफिनेशन टू पॉलिटिकल साइंस. से यहाँ पे क्या है? इट इज़ मच डिफिकल्ट to give you a proper definition of political science. क्यों? Because of its varying scope in different situation. क्यों political science का एक perfect definition क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसका जो scope है ना वो अलग अलग situation में अलग अलग है. Its scope is different in different situation. Let us examine some of those definition. See, first one is the Paul Janeth. Political science is that part of science which treats of the foundation of state and the principles of government. See, political science क्या है? It is that part of science जो deals with the फाउंडेशन ऑफ स्टेट, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट. लाइक अपना स्टेट किस बेसिस पे बनना चाहिए, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए अपने स्टेट में, ये जो सारे बेसिक्स हैं इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा? ये सारा आपको पॉलिटिकल साइंस से ही मिलेगा. सो दे हैव सेड पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ साइंस विच ट्रीट्स टू ऑफ द फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट. सेकेंड, H.J. Lusky. The study of politics concern itself with the life of men in relation to organized state. See, H.J. Lusky क्या बोल रहा है? ये क्या है? पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिक्स क्या है? इट इज़ अ स्टडी जो किससे रिलेटेड है? विद द लाइफ ऑफ द मैन, जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ से उन सबसे रिलेटेड है इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट. और ये सारा मैन की लाइफ से कहाँ पे रिलेटेड होता है? इन रिलेशन टू जो स्टेट वेल ऑर्गेनाइज्ड है उसके थ्रू यहाँ पे सब कुछ चलता है. लास्टवेल, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर. सी, लास्टवेल क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग
sharing of power. David Easton. Political science is the study of a authoritative allocation of values for a society. See, political science क्या है? Political science क्या है? It is nothing but it is the study of the authoritative allocation of value for a society. Garner. Political science begins and ends with the state. See, गार्नर क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड इट एंड्स विद द स्टेट. जब तक स्टेट है तब तक पॉलिटिकल साइंस है. जिस दिन स्टेट खत्म उस दिन पॉलिटिकल साइंस उस स्टेट में से खत्म. लियोकॉक. पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट ओनली. लियोकॉक क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस क्या है? इट डील्स ओनली विद द गवर्नमेंट. सी, सारे डेफिनेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप 2-3 डेफिनेशन याद कर लो बस. जैसे कि देखो, लियोकॉक क्या बोलता है? पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द गवर्नमेंट ओनली. गार्नर क्या बोलता है? पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट. ये 2 डेफिनेशन याद किया. और एक लास्ट वेल का, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर. 3 डेफिनेशन लर्न करके लिख दो एग्जाम में, बहुत हो गया. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ political science. Political science is a social science. See, political science क्या है? ये एक social science है. Its nature is different than physical science like physics and chemistry. उसका nature क्या है? हाँ, its nature is different than physical science like physics and chemistry. Whenever we study the origin, evolution and development of political science, we find various aspects of the nature of political science. See, whenever we study the, जब भी अपन origin, evolution या development of political science देखेंगे, right, what will find? We find various aspects of terms of political science. Will come across the various aspects of the nature of political science. The meaning and definition of political science shows that it is a systematic study of political theory, political institution, political force and process. See, अब ये जो है the definition and meaning of political science क्या है? ये एक systematic study है of political theory. बराबर है ना? ये अपन सब कुछ systematically पढ़ते हैं. It is the systematic study of political institution, political theory, political force and processes. When we call politics as political science, we have to see how far this subject stand to the test of the science in the secret sense of the term. See, when we call politics as political science, what we see कि बाबा ये सब्जेक्ट कितना अलग है, राइट, और कितना इसको इम्पोर्टेंस है, कितना इसमें सेंस बनता है एंड ऑल. इन दिस यूनिट वी डिस्कस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ सोशल साइंस. सी, अभी अपन पॉलिटिकल साइंस एज अ नेचर पढ़ने वाले हैं, तो उसमें अपन क्या देख रहे हैं? साइंस, ये एक पॉलिटिकल साइंस, ये एक सोशल साइंस है बोल के अपने को पता चलेगा. मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट, इज इट अ साइंस? Very often a question is raised whether the discipline of politics can be regarded as a science. See, बार बार क्या है, एक क्वेश्चन सबके मन में आता है, क्या पॉलिटिक्स भी सच में एक साइंस है बोल के, राइट? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही है ना. There is no unanimity among political thinkers whether the subject is science. Then what is science? See, अब पॉलिटिकल थिंकर्स ये वो लोग भी सोच रहे हैं कि ये सब्जेक्ट सच में एक साइंस है क्या, और अगर साइंस है तो एक्चुअल साइंस यानी क्या है. अपन साइंस साइंस बोल रहे तो एक्चुअल साइंस है ही क्या ये? तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज द फैक्ट ऑफ विच हैव बीन एक्यूरेटली and impartially collected, arranged and classified through the use of various scientific methods of observation, comparison and experimentation. See, science क्या है? Science, actual science क्या है? Science is the systematic body of knowledge, the fact of which
हैव बिन एक्यूरेटली एंड इम्पार्शली, और इसके फैक्ट्स वगैरह क्या है, सब कलेक्ट हुए हैं, हाँ, एक्यूरेटली एंड इम्पार्शली, अरेंज्ड एंड क्लासिफाइड थ्रू द यूज़ ऑफ वेरियस साइंटिफिक मेथड, और ये सब कैसे क्लासिफाई हुआ है, थ्रू द वेरियस साइंटिफिक मेथड्स। अपने पास जो भी कलेक्ट हुआ इंफॉर्मेशन वो सारे कैसे आए, इट इज़ थ्रू प्रेवियस ऑब्जर्वेशन, it is through proper observation, comparison and experimentation. Various arguments are forwarded for and against the discipline as a science. अच्छा, जब आप पॉलिटिकल साइंस को साइंस बोल रहे हो तो क्या है, बहुत से लोगों ने उसके फेवर में बोला, बहुत से लोगों में उसके अगेंस्ट बोला। सो एक्चुअल क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चल रहा है। Argument that it is not science. Political scientists like Maitland, Druckey, Gillette do not think that politics is really a science. See, political scientist क्या है, like Maitland, Druck, Gillette, वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनको नहीं लगता कि politics एक science है, तो उन्होंने कुछ points पे arguments किए हैं। We'll wind up our lecture here. In next lecture we'll continue. Meanwhile, if you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.